Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to start your new chapter, Correction of Errors. This is for intermediate accounting first year, and in this chapter we will, you can say, sort out the problems which the accountant will face for recording the entries in the journal. Okay, so before finding out the problems by the accountant, first of all, we must understand the meaning and the actual concept of this chapter. That why this chapter is arises. What is the need? Okay. And one thing more, before proceeding towards all the theoretical and explanation part, I would like to mention you that it is available on your books of Petiwala. This is your book page number 214. Okay, so it is available on your book page number 214. In the starting of the chapter, I would like to discuss with you the theoretical background, all the theories. Now, first of all, the basic of the chapter is and what is the actual meaning of the chapter name. We have the name of the chapter. It is correction of error. It means the accountant need to rectify something. Yeah, he want to make it something wrong in a correct way. So there are some mistakes which are done by the accountant who is recording or maintaining the books of accounts. As I talk about the word error, errors are basically the mistakes or the problems which are occurred while we are recording the transactions. जब भी हम कोई transaction record करते हैं तो उस वक्त हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है. Sometime हम journal entry गलत record कर देते हैं, sometime हम amount गलत कर देते हैं, या sometime हम उसमें nature of account, मतलब कभी इक्विपमेंट होता है आप उसको परचेजेस लिख देते हैं, कभी ड्राइंग्स होता है हम उसको नॉर्मल एक्सपेंस समझ के भी रिकॉर्ड कर देते हैं, या कोई अकाउंट ऐसा होता है जिसको आपको सेल्स में लिखना है, आप उसको जो है वो अपने पास क्रेडिट को डेबिट में लिख देते हैं. इट इज़ अ जनरल मिस्टेक्स विच कैन बी अकर ड्यू टू some reasons. Now let's proceed towards what are those reasons. We have correction of errors due to the reason of the following way. Errors are the problem. You can see here in the picture, you can see accountant. He's thinking how he will rectify the books of accounts, and he was in a deep thoughts. Now, errors, journal entry is incorrect but not posted. Means there are some journal entries who are literally wrongly made but not yet posted. Now he can correct it. Correction of errors. Correction procedures draw a line through the error and insert a correct title or account. Means you can rectify that account by putting a line over here that this transaction is wrongly recorded, and then you can insert a title account and you can rectify your correction of error. Like simply I will share for a few examples also with you. First of all, we should come about the reasons that why such happens. In maintaining records, error of omission and commission occurs. Omit करना मतलब होता है कोई चीज आप लिखना ही भूल गए, omit कर दिया आपने. Means it is not recorded. You have omitted this, you have cut it. Error of commission. In error of commission we have such errors which are wrong posting or wrong amounts inside. Like आपके पास जो है वो 5000 थे और आपने अमाउंट लिख दिया 500. So ये wrong posting of amounts को हम error of commission कहते हैं. अच्छा, another reason of recording the transaction is wrong. We have lack of knowledge. Maybe accountant के पास nature of accounts में या उसकी accounts की जो grip है वो इतनी strong ना हो, that because of such reasons he makes a mistake. Maybe he is careless, या तो वो बहुत ज़्यादा neglect है, negligence कर रहा है अपने accounting के records को maintain करने में. And the last reason, that maybe he has intentions to do some false attitude with the firm or with the organization, that he is doing some fraud or in a wrong intentionally work performance. So intentionally changing or not recording and not maintaining the correct answer. So these are the few concepts which we can go through, that why such points are happened. Now let's proceed towards your bookish
concept in your book page number 214. Kindly open your book page number 214, all the girls. Here on this page number 214, you can find some important part, theory of your book. Now let's share the theory of your book. Yes, this is the theory, which is have been taken from your book, so that you people can share your theories also with me, because in the board perspective, we do have few MCQs from this chapter and theory also, that they will ask you कि give you the wrong transaction, and they will ask you कि हमारे पास कौन सा error इस वक्त currently exist करता है. Now, as per your book, we should concern from the first line. For recording transaction in the books of accounts, it is quite natural that certain errors may arise either due to our क्यों हो रहे हैं, either due to the carelessness, okay, and lack of uneducate का मतलब होता है insufficient knowledge. Accountant के पास inadequate knowledge है, insufficient knowledge है, या फिर वो careless है. It is not possible to ascertain the correct profit or loss if the error exists. It is not possible. हमारे लिए ये possible नहीं है कि हम accurate या सही profit और loss को calculate कर सकें जब तक आपकी journal entries में error मौजूद है. Therefore adjustment in the wrong entry, तो हम अपनी wrong entries को correct करते हैं और उसको हम कहते हैं correction of errors. Why? Reason क्या दिया उन्हें correction of errors को? Because to get appropriate profit and loss, it is not possible to get proper profit and loss from the wrong entries. जब तक आपकी entries wrong होंगी, आपको correct amount और सही amount profit and loss की नहीं पता चलेगी, नहीं मालूम होगी, ठीक है ना. उसके लिए अगर आपने रॉन्ग एंट्रीज बनाई होंगी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा सही, तो डेफिनेटली आप उसको एडजस्ट करेंगे विद द करेक्ट एंट्रीज. ओके. Now we have two types of errors. Number one, we have bookkeeping, and another one we have trial balance. So here we have two types of balances. हमारे पास सबसे पहले mistakes कहाँ पे हो सकती है, या तो आपने जर्नल में bookkeeping मीन्स जर्नल में आपने कोई mistake करी होगी, and trial balance जो आपका लास्ट थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम सारे नेचर ऑफ अकाउंट्स के ब्रॉड डाउन लिखते हैं, या तो आपने वहाँ कोई गलती करी है. Now let's talk about your bookkeeping errors. I am requesting all the students, please kindly highlight with me as I'm highlighting on my book currently, my book page. So you have to highlight the same content, okay? Now, number one, we have bookkeeping errors. The bookkeeping errors are those which are made in the original documents, and that is original entry books, that is ledger, जो हमारे originally document में हो, journal के अंदर errors हो, वो हमारे पास currently four types of errors हैं. Number one, error of omission. ठीक है. Number one, error of omission. Number two, error of commission. Then number three, error of principal. And then number four, we have compensating error. Now let's talk about the omission. An error of omission is one where the transaction has been absolutely omitted. आप पूरी transaction को लिखना ही भूल गए हैं. Means आपने A B C के बाद आपने A B D की जनरल एंट्री बना ली, और सी वाली ट्रांजैक्शन को आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल में लिखना ही भूल गए हैं. Now what you have to do, suppose goods are bought from Mr. Y but not entry in the books of purchase in the purchase book. It means ये जो ट्रांजैक्शन थी जो मिस्टर वाई से आपने बुक्स बॉट करी थी गुड्स, वो आपने अपने पास जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड ही नहीं करी. डेफिनेटली जब हम पूरी ट्रांजैक्शन को ओवरऑल लिखना ही भूल जाएंगे, तो ना उस ट्रांजैक्शन का कोई लेजर बनेगा और ना वो ट्रायल बैलेंस का कोई पार्ट बनेगी. ठीक है. सच एरर्स डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ना उसका जनरल आया, ना ही उसका ब्रॉड डाउन जाएगा. तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, वो ट्रांजैक्शन जो कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी. नाउ एरर ऑफ कमीशन, when a transaction is complete, it's completely or partly incorrected. हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन पूरी तरह रॉन्ग हो, या उसका आपने हाफ ऑफ द पार्ट इनकरेक्ट किया हो, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन. That is called the error of commission in such a way that posting a wrong amount to the ledger. अच्छा, हम का error of commission में कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं. जैसे ही मैंने आपको बताया, wrong amount, 5,000 के अमाउंट को आपने
फिर 500 लिख दिया है, तो 5000 कुछ आपने 500 रिकॉर्ड किया है, तो डेफिनेटली आपने उसकी रिकॉर्डिंग रॉन्ग करी है, अमाउंट लिखने में गलती करी है। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, मे बी रॉन्ग साइड का मतलब कि आपको उसको डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, तो ये हो गई रॉन्ग साइड की गलती। कमीशन के जो एरर्स होते हैं वो रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग अकाउंट, मतलब कि परचेज अकाउंट में कोई चीज आनी थी, आपने उसको सेल्स में लिख दिया, ठीक है। एंड मेकिंग अ रॉन्ग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल, या तो हो सकता है आपने पूरी एंट्री ही गलत बनाई हो, मींस जो आपने जनरल जनरल में किसी को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, या हो सकता है आपने परचेज इक्विपमेंट है वहां पे आपने इक्विपमेंट का नाम ही ना यूज किया, आपने परचेजेस लिख के उसको ऑन पेएबल में रिकॉर्ड कर दिया, मींस ओवरऑल एंट्री ही गलत है। याद करिएगा, शुरू शुरू में जब हम लोग अपनी अकाउंट्स की जनरल एंट्री पढ़ते थे तो वी आर यूजली मेकिंग एरर ऑफ कमीशन, हम ज्यादातर एरर ऑफ कमीशन करते हैं जब स्टार्टिंग में अपनी जर्नल एंट्री सीख रहे होते हैं अपनी टीचर से। तो हम लोग कौन सी गलती करते हैं, एरर ऑफ कमीशंस करते हैं, या तो हम रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, या फिर हम उसको रॉन्ग साइड पे लिख देते हैं, रॉन्ग अकाउंट में लिख देते हैं, हमें नहीं पता चलता कि लाइबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिट पे लिखें, एसेट है तो उसको हमेशा डेबिट पे लिखें, ठीक है। हम ये भी नहीं ट्रांजेक्शन को पढ़ के शुरू शुरू में समझ पाते कि ये अमाउंट पेड है तो ये एक्सपेंस में ही जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास सोल गुड्स हैं तो उसके लिए हम मर्चेंडाइज कवर यूज करें, सेल्स कवर यूज करें। ये जो आपके मिस्टेक्स हैं ये इनिशियली आप लोग भी जब अपने लेजर कह रही हूँ जर्नल एंट्री जब बनाते थे तो हमारे पास भी एरर ऑफ कमीशन की गलती होती थी, ठीक है। वी वर मेकिंग, बट नाउ हम आप लोग विद द passage ऑफ टाइम आर गुड इनफ इन जर्नल। तो हम उस जर्नल में अगर आप अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली गलती भी निकाल सकते हैं। तो एरर ऑफ यानी करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोगों को उसका जर्नल आता होगा तो आप उसका करेक्ट बनाएंगे, सही है। नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहते हैं कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात जब बता रही हूँ तो प्लीज जहन में रखिएगा कि अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है यहाँ हमें उसको भी फॉलो अप में करना है। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज वन वेयर अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड sorry, without regard to the fundamental principle of double entry. Now what is the fundamental principle of double entry? I told you the double entry का fundamental principle क्या है, हम याद करते हैं AE, sorry, assets and expense increases, wait, INCRE, assets and expense increases, it will be debited, ठीक है। And then LCR increases, it will be credited. So this is your principle or the rule of double entry where we are recording the transaction और इसके accordingly हम record कर रहे होते हैं कि आपने purchase of equipment लिया है या sold of goods है, तो हम लोग उसको कैसे record करेंगे। Now it may consist wrong allocation or expenditure between capital and revenue, हमारे पास wrong allocation हो सकती है, inadequate means insufficient provision of bad debts और डाउटफुल डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, मींस यू हैव गिवन लोन टू सम पर्सन लाइक ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,000 और आपको उस 10,000 की रिटर्न की इतनी उम्मीद नहीं हो, सो दैट अमाउंट विल बी योर बैड डेट्स। बैड मीन्स बुरा एंड डेट्स मीन्स कर्जा, ओके। हियर द वर्ड बैड मीन्स इट्स योर बुरा एंड डेट्स मीन्स योर कर्जा, योर लोन। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, वो जिस पे आपको शुबा हो कि पता नहीं ये पैसे वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। सो वो पैसे जिस पे आपको डाउट है कि शायद आपको रिटर्न हो या रिटर्न ना हो, इज बिकम योर डाउटफुल डेट्स, क्लियर। Now, the last error is your compensating error. These are errors which cancel themselves out. Suppose an error of 5,000 on the debit side of an account may be compensated by an error of the same amount on the credit side. अच्छा, ये क्या है? Compensating error का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपने एक ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड किया,
ठीक है। बट सेम टाइम आपने दूसरी ट्रांजेक्शन को भी उसी अमाउंट से 5000 से ही रिकॉर्ड कर दिया। लाइक बहुत इजी से मैं आपको बताती हूँ कि आपने परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट थी, परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट, ओके, वेट, परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट, ठीक है। परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट की आप लोग जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, हमारे पास मशीनरी डेबिट, वेट फॉर अ machinery debit and then account payable credit, ठीक है। आपने इसको बताते हैं परचेज मशीनरी डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, मे बी इसकी अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50,000 एंड हियर आई विल राइट इट डाउन द अमाउंट 50,000, ठीक है। अब सपोज ये तो आपकी करेक्ट एंट्री है जो कि आप लोग यूजुअली रिकॉर्ड ही करते हैं, परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट, आपने उधार पे मशीनरी खरीदी है। अब यहाँ पे मैम जो करेक्ट एंट्री है अकाउंट पेबल की जगह मैंने यहाँ पे अगर कैश लिख दिया हो, अब गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया है, इसका मतलब मेरा कैश मैंने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया और मुझे एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था, अकाउंट्स पेएबल। हो सकता है नेक्स्ट कोई ट्रांजेक्शन हो जिसमें मेरे पास अकाउंट्स पेएबल नहीं आना हो, मींस कैश डेबिट 50,000 और वो कोई और ट्रांजेक्शन होगी और मैंने यहाँ पे अकाउंट्स, उस ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स पेबल नहीं आना था और मैंने यहाँ पे अकाउंट्स पेबल 50,000 रिकॉर्ड कर दिया है। सो हेयर ये वाला जो 50,000 है और ये वाला 50,000 है ये तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे आपकी जो कैश की अमाउंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज यू आर यूजिंग कैश वन टाइम्स क्रेडिट एंड कैश वन टाइम डेबिट, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, ठीक है। सो जो आपका कैश अगर क्रेडिट में है उसको आपको खत्म करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो आपने उसको डेबिट कर दिया है। एंड देन मशीनरी जो कि एक्चुअली आपको डेबिट ही रिकॉर्ड करनी थी, आपने उसके कंट्रास्ट में किस अकाउंट को क्रेडिट करना था, अकाउंट्स पेबल को, उसको आपने किसी नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट कर दिया। सो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजेक्शन करेक्ट बन गई है, बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट ट्रांजेक्शन विच यू हैव रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। meanwhile अभी हो सकता है with the practice of the questions you people will be understand it more better, क्योंकि हम correction of errors में 3 transactions record करेंगे। we will record 3 transactions in correction of errors। सबसे पहले हमारे पास एक transaction बनेगी जो कि आप correct transaction बनाएंगे, जो कि accountant हमेशा बनाता ही है जो correct transaction होती है। फिर आप एक wrong transaction record करेंगे जो कि accountant ने गलती करी होगी, and then उसके बाद आप record करिएगा corrected entry, okay। So these are the way, wait for a while. Hmm. We have to record or we have to do the correction of errors in 3 ways: correct, wrong and then corrected। हम सबसे पहले अपनी ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करेंगे वो करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन की। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट ने क्या गलती करी एंड देन हम उसकी करेक्टेड बनाएंगे मीनवाइल, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स योर लास्ट ट्रायल बैलेंस एरर, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। यस, ट्रायल बैलेंस एरर, ट्रायल बैलेंस एज यू ऑल नो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें कोई भी ट्रांजेक्शन अवेलेबल होती है, ठीक है। आई प्रोसीड द स्टेप नंबर 1। आपको एग्जाम में सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन अवेलेबल होती है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन से आप लोग बनाते हैं जनाब जनरल जर्नल, ठीक है। जनरल जर्नल के बाद आप लोग रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजेक्शन को अपने लेजर्स में एंड देन यू आर रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजेक्शन इन योर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ओके, ये इस ट्रांजैक्शन में आप लोग बेटा हमेशा रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ऑल द लेजर्स, इस लेजर का जब हम लोग टी अकाउंट बनाते हैं, इन लेजर्स का जहां भी ब्रॉट डाउन आता है हम उस लेजर का ब्रॉट डाउन किस में रिकॉर्ड करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये आपके पास स्टेप्स हैं फॉर द एग्जामिनेशन। आपको ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं, जर्नल जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं एंड देन आप ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में तमाम जितने भी आपके पास नेचर ऑफ अकाउंट्स आते हैं आप उसके ब्रॉड डाउन को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स एरर्स व्हिच आर मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर्स। बेसिकली ट्रायल बैलेंस की नीड क्या होती है,
वाई वी नीड ट्रायल बैलेंस फॉर द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, जितनी भी आपको ट्रायल बैलेंस की नीड होती है, ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपके जर्नल को और आपके लेजर्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अर्थमेटिक का जो रूल होता है, आप लोग को पता होगा अर्थमेटिक किसे कहते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक रूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे पास अर्थमेटिक में आते हैं। नंबर वन, ओमिशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। आपने कोई अमाउंट लिखना भूल गए, ओमिशन ऑफ बैलेंस कर दिया है, ठीक है। मीन्स एनी अमाउंट, जो किसी कोई भी आपकी अमाउंट जो कि ब्रॉट डाउन हुई हुई थी ट्रायल बैलेंस में, आप उस अमाउंट को लिखना भूल गए, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू द रॉन्ग कॉलम। हो सकता है ब्रॉट डाउन आपको क्रेडिट साइड पे लिखना था, जो कि आपके टी अकाउंट के भी क्रेडिट साइड पे है, लेकिन आप जब ट्रायल बैलेंस में लिख रहे थे तो आप क्रेडिट वाले को डेबिट में लिख गए, तो इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू द रॉन्ग कॉलम। लेजर से आपने देखा कि वो क्रेडिट साइड पे है, लेकिन जैसे ही आप अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करने लग गए, आपने उसको ब्रॉट डाउन पे लिख दिया, मतलब सॉरी, आपने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। तो ये आपने गलत कॉलम में ट्रायल बैलेंस की रिकॉर्डिंग कर दी। अमाउंट ऑफ बैलेंस रॉन्गली एंटर इन द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है कि आपने लेजर में देखा हो कि अमाउंट 1000 है, जब आप ट्रायल बैलेंस में लिखने लगे तो आपने वहां पे 100 रुपीज लिख दिया, ये अमाउंट ऑफ बैलेंस की गलती हो गई, ठीक है। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं आप लोग के लिए हाईलाइट कर रही हूँ, जो कि यूजली हम लोग भी कभी करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग कर रहे हैं अकाउंट्स पढ़ते हैं, डेफिनेटली अकाउंटेंट भी वही मिस्टेक्स कर सकते हैं। रॉन्ग एडिशन टू द ट्रायल बैलेंस कॉलम, मे बी जब आप लोग ट्रायल बैलेंस पूरा बना रहे हो, टोटलिंग कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी एडिशन की मिस्टेक्स हो, तो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स करने पड़ते हैं। और तमाम भी मेजर्स, जो जितने भी एरर्स होते हैं, वो ऐसे एरर्स हैं जो कि आपकी किसी भी प्रैक्टिस के बगैर आपको नहीं आ सकते। एज यू कैन सी कि हमने आज करेक्शन ऑफ एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं, कि बेसिकली हमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स में करेक्शन क्यों आती हैं। मे बी हम लोग बहुत केयरलेसली उसको रिकॉर्ड कर रहे हों, या हमारी नॉलेज इनसफिशेंट है। देन वी आर कमिंग टू वर्ड्स कि हमारे पास करेंटली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मौजूद हैं बेटे। टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मौजूद हैं, एक बुक कीपिंग है, एक ट्रायल बैलेंस है। बुक कीपिंग का मतलब होता है जनरल जनरल। देन वी आर कमिंग टू वर्ड्स कि आपके पास बुक कीपिंग एरर्स में कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स ऑफ एरर्स हैं। ओमिशन है एरर, कमीशन, देन एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंपनसेटिंग। ओमिशन में क्या होता है कि आप कोई ट्रांजेक्शन पूरी लिखना भूल गए हैं। कमीशन के अंदर 3 to 4 वेज होते हैं जिसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। वो कौन कौन से होती हैं? रॉन्ग अमाउंट होती है, रॉन्ग साइड होती है, रॉन्ग अकाउंट होता है, या फिर रॉन्ग एंट्री होती है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपने इसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट गलत अप्लाई किया है, ठीक है। एरर ऑफ इन कंपनसेटिंग एरर्स क्या है कि आपने सेम टाइम पे जिस एंट्री को डेबिट करना था वो आपने गलत रिकॉर्ड करी है, लेकिन आपने सेम एंट्री को क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस की बात आती है, तो ट्रायल बैलेंस में हेयर यस, ट्रायल बैलेंस एरर्स हम आपके पास किस रीजंस की वजह से होते हैं? मे बी आपने कोई भी बैलेंस को ओमिट कर दिया है। जो भी आपके पास लेजर में अमाउंट थी ट्रांसफर ऑफ बैलेंस की, उसको आपने डेबिट के बजाय क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। यानी आपने लेजर में देखा कि वो ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे है, जब ट्रायल बैलेंस पे लिखने लगे तो डेबिट साइड पे लिख दिया। अमाउंट ऑफ बैलेंस रॉन्गली एंटर्ड एंड देन रॉन्ग एडिशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कॉलम। This is all the theoretical background which we have gone through from our book. And from the book, I told you this is your book page number 214 from the books of Petiwala First Year Intermediate Accounting. Now let's come towards your question solution. Okay, before proceeding towards the question, now let's proceed towards your question number one from your book page number 215. Yes, this is your question number one from book page number 215. I would like to mention your page number also here because you people will be get puzzled. Meanwhile, this is your book page 215. Clear? Yes. Okay, now proceed. We have number one transaction purchase an office equipment for rupees 8,000 and wrongly passed through
परचेज अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनानी है वो आपने करेक्ट एंट्री बनानी होती है, और करेक्ट एंट्री को हम परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रुपीज 8,000, ठीक है। हम इस इतनी ट्रांजेक्शन को, वेट, जहां तक मैंने हाईलाइट किया है हम सिर्फ इस ट्रांजेक्शन को फोकस करेंगे और इसकी आप जनरल एंट्री बनाएंगे, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 8,000। ठीक है, जब भी हम ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड देन कैश क्रेडिट। ठीक है, ये आपकी करेक्ट एंट्री है, जो कि एक अकाउंटेंट ने अगर गलती नहीं करी होती तो कौन सी एंट्री बनाता, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट की, वो बनाता ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड देन कैश क्रेडिट। ठीक है, देन आगे उन्होंने बताया हुआ है कि गलती से उसने उसको लिख दिया है परचेज अकाउंट में। अब हमने उसको परचेज अकाउंट में नहीं लिखना था क्योंकि आपके पास नेम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है। तो अकाउंटेंट ने गलती कहाँ करी है, अकाउंटेंट ने उसको परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट लिख दिया। दिस इज द एंट्री मेड बाय द अकाउंटेंट, जो कि गलत एंट्री है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको करेक्ट कैसे करना है। सही एंट्री क्या थी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास क्या चीज डेबिट होनी थी, देखें जिस अकाउंट को, जिस नाम को उन्होंने यूज किया हुआ है, जैसे उन्होंने कहा परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट को गलती से लिख दिया है किसमें, परचेज के अकाउंट में। तो आप जिस स्पेसिफिक अकाउंट की वो बात कर रहे हैं, हम उसी अकाउंट को करेक्टिफाई करेंगे। सही है, आपको करेक्ट एंट्री में डेबिट किसे करना था, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना था, तो हमने डेबिट लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट। ये आपकी करेक्ट एंट्री है। ठीक है, कैश दोनों साइड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कैश को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो परचेजेस आपने गलती से डेबिट कर दी थी, आपको वो खत्म करनी है। क्लियर, वो जो आपको खत्म करनी है, डेबिट साइड को आप खत्म करने के लिए हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके लिखें क्योंकि क्रेडिट है। क्लियर, आपको सही अकाउंट में क्या करना था, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट करी थी, जहां पे आपने डेबिट साइड पे इक्विपमेंट की जगह लिख दिया है परचेजेस। ये अकाउंटेंट ने गलती करी है। परचेजेस के अकाउंट को आपको खत्म करना है, वो डेबिट में मौजूद है, उसको खत्म करने के लिए आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, एंड देन आपको रिकॉर्ड किसको करना था, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट को, तो डेफिनेटली ऑफिस इक्विपमेंट करेक्ट एंट्री में आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, कैश को हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे अपनी लास्ट एंट्री में क्योंकि उन्होंने कैश अकाउंट की आपसे करेक्शन नहीं मांगी। जिस अकाउंट की ट्रांजैक्शन उन्होंने करेक्टेड मांगी है वो है परचेज अकाउंट, को हमें हटाना है और उसकी जगह कौन सा अकाउंट सही आना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट आना चाहिए था, हमने उसको रिकॉर्ड किया। इज दिस क्लियर? Transaction, we have shortage of time over here. Sold goods to Mr. C for rupees 12,000 on credit. हमारे पास ट्रांजेक्शन कहाँ पे खत्म हो रही है, ऑन क्रेडिट पे। सही है, और सोल्ड गुड्स से शुरू होगी और मिस्टर सी 12,000, ये आपकी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेचा है मिस्टर सी को 12,000 रुपए का। सेल्स ऑन क्रेडिट की जर्नल एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड देन सेल्स क्रेडिट। ठीक है, हमने क्या करेक्ट एंट्री क्या बनाई है बेटे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड देन सेल्स क्रेडिट। ये आपकी करेक्ट एंट्री है, अगर आपने गलती नहीं करी होती तो आप यही बनाते। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, उसने लिखी ही नहीं, मींस उसने ये एरर ऑफ ओमिशन कर दिया है ना। अब जब उसने कोई एंट्री लिखी नहीं, कोई गलती ही नहीं करी, तो वो और भी अच्छी बात है। जब गलती नहीं करी तो करेक्टेड एंट्री हमारी क्या बनेगी, जो आपकी करेक्ट एंट्री थी वही आपकी करेक्टेड एंट्री बन जाएगी। ठीक है, सो जब हमारे पास सबसे अच्छी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जिसमें अकाउंटेंट उस ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल जाए। जब लिखना भूल जाएगा तो हमें जो अपनी करेक्ट एंट्री पता है वही हम अपनी करेक्टेड में भी लिख देंगे। क्लियर, now, last transaction which I would like to discuss over here, paid salaries to Mr. Y, कैश 7,000। मिस्टर वाई को हमने सैलरीज पे करी हैं, सैलरीज की नेचर हमारी एक्सपेंस है और हमने एक्सपेंस किया है 7,000 का। ये आपकी मेन ट्रांजेक्शन है। wrongly recorded as rupees 700 in the books of accounts. Yes, यहाँ पे जो गलती आई है वो अमाउंट की गलती है, मीन्स 7,000 को आपने 700 से रिकॉर्ड कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच एरर वी हैव डन मिस्टेकन। पहले तो हम एरर को जस्टिफाई कर लेते हैं। वैसे एरर पूछते नहीं है एग्जाम में आपको, बट आपको एमसीक्यूज के प्रिपरेशन के लिए पता होना चाहिए कि इस वक्त अकाउंटेंट ने कौन से एरर की मिस्टेक करी है।
Yes, we have the last entry where we are recording. हमारे पास जो last entry है उसको हम record कैसे कर रहे हैं जनाब? उसकी corrected entry है pay salaries to Mr. Y. Usually हम salaries को कैसे record करते हैं? Salaries expense debit cash credit. This is your correct entry of the salaries expense debit cash credit. सही हम entry बनाते हैं तो ये बनाते हैं. अकाउंटेंट भाई ने क्या एंट्री बनाई है? नाउ अकाउंटेंट मेड दिस एंट्री लाइक दिस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. उन्होंने जनरल जनरल में गलती नहीं करी है, उन्होंने अमाउंट में गलती कर दी है कि 7,000 को 700 लिख दिया है. इसका मतलब उनको कितने पैसे और लिखने चाहिए, यानी 700 उन्होंने चलो लिख तो दिए लेकिन कुछ पैसे और भी ऐड होंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा. ना उसको बैलेंस करने के लिए हम 7,000 में से माइनस करेंगे 7,000 माइनस 700, तो हमें पता चल जाएगा कि अकाउंटेंट को कितने पैसे और रिकॉर्ड करने चाहिए. 6,300 अकाउंटेंट को और रिकॉर्ड करने चाहिए. फिर हमने उसकी करेक्टेड एंट्री कैसे बनाई? हमने कहा ओके, अकाउंटेंट ने गलती कर दी है, सैलरीज एक्सपेंस में हमने 6,300 और ऐड कर दिए, तो यहाँ भी 700 रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ 6,300, टोटल हो गए 7,000. कैश में उन्होंने 700 रिकॉर्ड किए हुए, अगेन हमने कैश में भी 6,300 की एंट्री बना दी, तो ये आपका टोटल हो गया 7,000. मींस हमने अकाउंटेंट की जो जर्नल एंट्री है उसको हमने काटा नहीं, उसी के अंदर एडजस्टमेंट कर दी, क्योंकि अमाउंट की कमी थी, कम पैसे रिकॉर्ड किए थे, इसलिए हमने वही एंट्री दोबारा बनाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. यहाँ पे सैलरीज डेबिट में होता है तो इंक्रीज होता है, हमें भी दोबारा सैलरीज डेबिट में लिख के इंक्रीज करनी है, लेकिन हम 7,000 से नहीं बनाएंगे, हम उसकी डिफरेंस की अमाउंट से बनाएंगे. 6,300, 700 प्लस 6,300 इज योर 7,000. एंड सेम हमने कैश में भी यही किया कि कैश आपके पास 700 रिकॉर्डेड था, और कैश भी हमें हमारे पास से कम करना था, डिक्रीज करना था, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, तो हमने दोबारा से कैश को क्रेडिट में रिकॉर्ड करके 6,300 से रिकॉर्ड कर दिया. नाउ यू कैन से कि हमने अकाउंटेंट की रॉन्ग एंट्री जो कि उसने अमाउंट में गलती करी थी उसको कैसे करेक्टिफाई किया है. ठीक है, so this is all from the today's lecture, correction of errors. Meanwhile, with the passage of time, you people will be learned as you will practicing the same question. Now you people have to follow the same question for your practice at home also. You have to solve this question in your books of accounts. This is your question number 1, and you have to solve question number 2 also from your book page number 215. So note it down, your home assignment. Your home task will be, okay, your home task will be, you have to do question 1 and question 2. Okay, you have to solve question 1 and 2 on book page 215, so that you people can get the proper knowledge. क्योंकि जब साइड बाय साइड, जब तक कि बेटा आप लोग अकाउंट्स जो हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे खुद से, तो अकाउंट्स विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट वर्किंग नहीं आती. मींस मीन वाइल राइट नाउ इन द क्लास मैं भी आप लोगों के साथ वर्क परफॉर्मेंस कर रही हूँ, सो दैट आई एम good in solving and understanding the question. So you have to do the same thing with me right now. This is all for today. This is your home task, question number 1 and 2. And for your revision, this each and every task is available on the YouTube, so you can go through the lecture once again if you want. Okay, so thank you so much for joining the class.